A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. You know very well in the last few videos we discussed the chapter number 10, that is a rectification of error. In this chapter, we firstly discussed what do you mean by the accounting error. Thereafter, we discussed the classification of the error, and you know very well there are basically four types of the error in the accounting. That is the error of commission, error of omission, compensating error, and principal error. And if we are talking about the rectification of the error, so the rectification of error is totally based on the nature of the error. There are basically two nature of the error. The first nature of the error is that is a two-side error. You know very well, the two-sided error are those errors which do not affect the trial balance. यानी two-side error वो error होते हैं जो trial balance पे effect नहीं डालते हैं. As well as two-sided error affect the debit as well as the credit side of the particular account. यानी if we are talking about the cash account debit to sales, तो कैश में भी एरर होगा, सेल्स में भी एरर होगा. सो दिस टाइप्स ऑफ द एरर विल बी नोन एज द टू साइड एरर. And for the rectification of the two-side error, we pass the simple journal entry. You can see that in the last few videos, we already discussed the practical problem related to the two-sided error. Thus, another type of the error from the rectification point of view, so we can see that the second type of the error is one-side error. One-sided error are those error which can be affect the trial balance, जो trial balance को affect करता है, and it affects only the one side of the account, जो सिर्फ अकाउंट के किसी एक साइड को इफेक्ट करता है, या तो डेबिट को इफेक्ट करता है या तो क्रेडिट को इफेक्ट करता है. और इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी वन साइडेड एरर, रेक्टिफिकेशन of one-sided error, if we are talking about the rectification of one-sided error, so it is totally based on its location, its stage of location. You know very well, जब हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने की बात करते हैं तो उसका लोकेशन जो है, उसका जो फाइंडिंग है, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद. यानी इस तरह के जो एरर्स हैं वो या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले फाइंड आउट किए जाते हैं या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइंड आउट किए जाते हैं. So you know very well, when we are talking about the rectification of one-sided error, so basically there are basically two method by which we can rectify the one-sided error. One-sided error को rectify करने का दो तरीका है, दो प्रोसेस है. ये डिपेंड करता है कि हमने वन साइडेड एरर को लोकेट कहाँ किया है, यानी कि पता कब लगा है. यानी वन साइडेड एरर है, यानी एरर है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि हमने इस एरर को पकड़ा कब, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद. अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हमने वन साइडेड एरर को लोकेट कर लिया और उसको रेक्टिफाई करने की बात की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ द वन साइडेड एरर बिफोर द ट्रायल बैलेंस, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल वी यूज्ड द लेजर अकाउंट. यानी इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में चेंजेस कर देते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर which are located after preparation of trial balance or which are rectified after the preparation of trial balance, दोनों बात है. यानी उस एरर को या तो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लोकेट किया है और साथ ही साथ उस एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब उसको रेक्टिफाई करने की बात हो रही है. तो यहां पर जब हम उस ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन की बात होगी, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम कैसे रेक्टिफिकेशन को, हम किस तरह से वन साइड एरर को रेक्टिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक अकाउंट दैट इज अ सस्पेंस अकाउंट. यानी कि हम सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से क्या करेंगे, वी पास द जर्नल एंट्री. So in this situation, we opened a new account, we open a newly account called a suspense account. So this is the called the whole process of the rectification of one-sided error. You can see that the rectification of one-sided error is totally based on its location and its rectification stages.
if any one-sided error is located and rectified before the preparation of trial balance, so in this situation we use the particular ledger account and rectifying it. कल के वीडियो में आप लोगों ने यही देखा होगा कि हम किस तरह से वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। और अगर हम दूसरी बात करें कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कोई लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, हम सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, इसमें सिर्फ एक अकाउंट में गलती होगी, दूसरे अकाउंट की जर्नल एंट्री पास करने के लिए मुझे किस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। कल की वीडियोस में हम लोगों ने बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के रेक्टिफिकेशन के मेथड्स को सीखा था और इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को सीखा था, जिसको मैंने आपको आज फिर से रिवाइज करा दिया। सो नाउ वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि सर ये बताइए, थ्योरेटिकली समझ में आ गया, प्लस प्लीज गिव मी अ some example how we can rectify the two-sided error without after the preparation of trial balance. Okay, so let's we take the one example for your convenience. So the question is, please note down in your copy one by one. Rectify the following error. The question is rectify the following error. ये एरर्स हैं, उन सारे एरर्स को क्या करिए, रेक्टिफाई करिए। ओके सर, रेक्टिफाई करना है हमको। कौन कौन से एरर हैं? सो द एरर नंबर 1 इज सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा, सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा ₹1600 was posted to her account as ₹1000। अब इस एरर को कल हमने रेक्टिफाई किया था, लेकिन ये एज्यूम किया था कि हम ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। आज सेम एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे ये एज्यूम करके, एज्यूमिंग errors are rectified after preparation of trial balance। ये हमें एज्यूम करके चल रहा है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मैंने ये आपको एज्यूम करके यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया कि इस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है और ये एज्यूम करना है कि ये एरर रेक्टिफाई कब कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। सो द फर्स्ट एरर, लेट्स वी टेक द वन मोर एग्जांपल, वन मोर एरर। एक एरर से सर कहाँ क्लियर होगा, एक एरर और बताइए, एक एरर और लिख लो, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेप्रीशिएशन, रिटर्न ऑफ on furniture ₹1500 were not posted to depreciation account। यानी हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया फर्नीचर पे, लेकिन डेप्रीशिएशन अकाउंट में ही पोस्ट ही नहीं किया। दूसरा एरर होगा। वन मोर एरर। अब पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है। अगर टू साइडेड एरर है तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर वन साइडेड एरर है तो, और वन साइडेड एरर में वो कौन सा कंडीशन है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो भैया हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, सस्पेंस अकाउंट की। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। और अगर यही हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करते तो हम पर्टिकुलर अकाउंट बनाते। कल मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया था अकाउंट बनाकर कैसे आपको इन सारे एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है। नेक्स्ट, वन मोर एरर, कैश पेड टू नेहा, कैश पेड टू नेहा
rupees 2000 was not posted to her account. अब आप देख रहे होगे इसमें जो मैंने 3 एरर दिखाया है, इसमें जो पहला एरर है वो एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन का कौन सा एरर है? ये एरर ऑफ कमीशन का वो एरर है जिसमें हम वैल्यू को कम रिकॉर्ड करते, अंडरकास्टिंग का। ये क्या है? डेप्रीशिएशन मैंने चार्ज किया फर्नीचर पे, लेकिन उसे डेप्रीशिएशन में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड करना कहां भूल गए? डेप्रीशिएशन, यानी सिंगल अकाउंट में इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो पहले तो आप फाइंड आउट करना सीख लो कि एरर वन साइडेड है कि टू साइड। देखो यहां पर क्लियर हो रहा है, वॉज नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट। हर का मतलब यहाँ पे क्या है? उस गर्ल से, यानी मेघा से, यानी मेघा के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, यानी एक ही जगह तो पोस्ट नहीं हुआ है, बाकी जगह पोस्ट हो चुका है। इसी तरह से डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर ₹1500 वेयर नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। कहां पोस्ट नहीं हुआ है सर? खाली डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब कौन सा एरर है सर? समझ में आ गया, इट इज अ वन साइडेड एरर। उसी तरह से देखो, कैश पेड टू नेहा ₹2000 was not posted to her account। हाँ सर, उसके अकाउंट, किसके अकाउंट में नहीं पोस्ट हुआ? नेहा के ही अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, बाकी तो सब कुछ सही है। तो आप इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि एंट्री होती क्या, ओरिजिनल एंट्री क्या होती। जब हम एंट्री पास करते तो क्या एंट्री बनती? इट मींस फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में एंट्री क्या बनती? फर्स्ट सिचुएशन में एंट्री क्या बनती? सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा 1600 was posted to her account ₹1000। यानी कि सेल्स रिटर्न किए किससे? मेगा से। तो एंट्री होती सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेगा। ठीक है, मेगा हुआ कितना? 1600 का सेल्स रिटर्न हुआ था, लेकिन मेगा में केवल कितना रिकॉर्ड हुआ? 1000। ओरिजिनल एंट्री ये हुई होगी फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अगर आप देख लो तो क्या एंट्री हुई होगी? इन द सेकंड सिचुएशन द एंट्री विल बी depreciation written off on furniture 1500 were not posted to depreciation account। यानी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? depreciation account debit to, ये ओरिजिनल एंट्री मतलब सही एंट्री मैं बता रहा हूँ, सॉरी। डेप्रीशिएशन लगाया फर्नीचर पे, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1500। और थर्ड एरर विल बी कैश पेड टू नेहा ₹2000 was not posted to her account। तो कैश किसको पेड किया? नेहा को। सो द एंट्री विल बी नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट? 2000। सो अगर आप देखो तीनों की मैंने करेक्ट एंट्री कर दी। सपोज ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना समझो, सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा ₹1600, तो एंट्री क्या होती? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेगा। डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ फर्नीचर 1500, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एंट्री हो गई। कैश पेड टू नेहा ₹2000, कैश पेड टू नेहा, तो नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती। ओरिजिनली हम यही एंट्री पास करते। यस सर, यही करते एंट्री पास। द पॉइंट इज दैट कि सर ओरिजिनल एंट्री का मतलब ये एंट्री हम पास करते। अब गलती क्या हुई? वॉज पोस्टेड टू हर अकाउंट एस ₹1000। यानी नेहा के अकाउंट में, मेघा के अकाउंट में कितना रुपए पोस्ट हुआ? 1600 की जगह कितना पोस्ट हो गया? 1000। यानी ये एक एरर आपने फाइंड आउट किया। फर्स्ट एरर में ये हुआ कि मेघा 1000 से क्रेडिट हुई, क्रेडिट कितने से होनी चाहिए थी? 1600 रुपए से। दूसरे कंडीशन में देखो, डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ फर्नीचर ₹1500 वेर नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। यानी डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, यानी डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, पोस्ट सिर्फ कहां हुआ? फर्नीचर अकाउंट। यस सर। तीसरे सिचुएशन में देखो, कैश पेड टू नेहा ₹2000 was not posted to her account। नेहा के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब नेहा का अकाउंट पोस्ट नहीं हुआ। जिसको मैंने ब्लैक से बॉक्स में डाल दिया है, इट मींस एरर वही है। और एरर को रेक्टिफाई करने के लिए यू नो वेरी वेल वी पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। एंट्री क्या पास होगी? रेक्टिफिकेशन। यहां देखो, इन सारे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जनरल एंट्रीज कौन कौन सी होगी? और यू नो वेरी वेल इन दिस सिचुएशन वी यूज द हेल्प ऑफ, वी टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सो नंबर 1,
आपने क्या किया, मेघा कितने से क्रेडिट हुई, 1000 से, होनी कितनी चाहिए थी 1600 रुपए से, कितने से कम क्रेडिट हुई, तो मेघा को उतने से क्रेडिट कर दो, कितने से 600 रुपए से, होना चाहिए 1600 से, हुई 1000 से, 600 से क्रेडिट कर दो। और किसकी हेल्प ले लो, जिसका कोई नहीं होता इस सिचुएशन में, उसका कौन होता है, उसका भगवान होता है। यू नो वेरी वेल, इट इज अ वेरी फेमस लाइन, ऊपर वाला सब देख रहा है। सो द सेकेंड सिचुएशन यू कैन सी दैट डेप्रीशिएशन डेबिट नहीं हुआ, डेप्रीशिएशन आपका डेबिट नहीं हुआ, फर्नीचर क्रेडिट हुआ, तो डेप्रीशिएशन को सही करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो। मतलब डेप्रीशिएशन में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो डेप्रीशिएशन को डेबिट कर दो। किसकी हेल्प लेनी होती है सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन वी when error are rectified after the preparation of trial balance, so the second rectification entry, दूसरी entry, ये आपका आंसर है। दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज योर वर्किंग पार्ट। ये चीज आप माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने आपको लिख के दिया है। थर्ड सिचुएशन में दिस इज योर आंसर। द थर्ड पार्ट, कैश पेड टू नेहा, तो नेहा को डेबिट नहीं किया आपने, so the correction will be नेहा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आप देख रहे हो, you will take the help of suspense account. So this is the full and final solution of first question, in which question you can see that we rectify the one-sided error after the preparation of trial balance, यानी यहाँ पर हम लोगों ने one-sided error को rectify किया है trial balance बनाने के बाद। और किसकी हेल्प ली है, we take the help of suspense account. ओके, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि एक एरर मैं और आपके लिए ले लेता हूं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहां पास करेंगे, ठीक है। सो वन मोर एरर फॉर यू, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और शायद अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। द एरर इज क्रेडिट सेल्स टू मोहन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन rupees 10,000 were to his account as rupees 12,000। अब देखो, मैंने क्रेडिट सेल्स किया मोहन को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये सर एंट्री होती है सिचुएशन में मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स दैट इज 12,000। सही कर रहा हूं, नहीं सर, सेल्स तो हमने 12,000 का किया ना, बट फॉल्ट क्या हुई, वर टू हिज अकाउंट एज, मतलब मैंने उसके अकाउंट में कितना नोट डाउन कर दिया, हिज मतलब क्या होगा, सेल्स या मोहन, हिज का मतलब यहाँ पर्सन से है ना, सो हिज का मतलब यहाँ पर हमने किस में रिकॉर्ड किया होगा, मोहन के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया होगा, मोहन के अकाउंट में हमने 10,000 की जगह क्या कितना राइट ऑफ कर दिया होगा, 12,000। सर ये गड़बड़ हो गया, हमने 12,000 रिकॉर्ड कर दिया, यानी 10,000 के बदले 12,000 रिकॉर्ड कर दिया, वो भी डेबिट कर दिया। सर जब कोई ओवरकास्ट होता है, मैंने आपको बताया था, जब अंडरकास्ट होता है तो सेम जगह इफेक्ट पड़ता है। जैसे इस सिचुएशन में मेघा अंडरकास्ट हुई थी 600 रुपए से, तो मेघा का वहां पे भी क्रेडिट हुई थी, यहाँ पे भी क्रेडिट, लेकिन यहाँ ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट के सिचुएशन में एकदम माइंड में रख लो, इन द केस ऑफ द ओवरकास्टिंग एरर विच आर रिलेटेड टू द एरर ऑफ कमीशन, वहां पर अकाउंट को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि मोहन यहाँ पर 2,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। 2,000 रुपए से क्रेडिट हो गया, किसकी हेल्प ले लिया हम लोगों ने, वी टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सो यू कैन सी दैट अंडरकास्टिंग में एरर को रेक्टिफाई करते वक्त हम क्या करते हैं, अंडरकास्टिंग में एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग सेम जगह ट्रीटमेंट करते हैं, यानी अगर डेबिट हुआ है अकाउंट तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट करते हैं, बट जब एरर में ओवरकास्टिंग अमाउंट हो जाती है तो वहां अकाउंट को डेबिट अगर हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट हुआ होता तो डेबिट करते, यानी अपोजिट इफेक्ट, क्योंकि उसकी वैल्यू कम करनी है।
यहाँ इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो सेम जगह इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ वैल्यू उसकी कम करनी है सो इसके अपोजिट जगह इफेक्ट पड़ेगा. ओके, सो दिस इज अ rectification of one side error with the help of suspense account. So let's we take the one more important question, because in the examination it is very important for you कि sometimes in the examination suspense account is prepared by the examiner. So let's we take the one question for your convenience to determining the suspense account, how we will prepare the suspense account. Okay, so the next question, as you can see that the trial balance of Mohan did not agree, and he put the difference and he put the difference to suspense account. ये आपको हिंट दे रहा है कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, यानी ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हुआ, और उस और उसने कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया, सस्पेंस अकाउंट. तो आपको बेसिकली करना क्या है, यू नो वेरी वेल, हमें बेसिकली यही करना है कि जितने भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलने के कारण जितने भी एरर्स हुए हैं उन सारे एरर को रेक्टिफाई करना है, और किसकी हेल्प लेना है, वी टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट. He discovered the following error. The following errors, वो सारे errors कौन से हैं, so please इसको देखा जाए. The first error is sales return under cast by rupees 800. सेल्स रिटर्न कितने हो गया, 800 रुपीज से अंडर कास्ट हो गया. नंबर सेकेंड एरर इज परचेज रिटर्न टू साहू रुपीज 2000 वर नॉट पोस्टेड, यानी साहू को जो परचेज रिटर्न किया गया था वो पोस्टेड ही नहीं हुआ. एंड नंबर थर्ड इज इंस्टॉलेशन चार्ज on machinery rupees 500 were debited to sundry expenses or expenses expense account as rupees 50. अब ये तीन एरर ही मैंने लिए आपके लिए. ये तीनों एरर को आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज सेज दैट रेक्टिफाई द एरर. इन एरर्स को क्या करिए, रेक्टिफाई करिए, एज वेल एज एन ascertain the difference in सस्पेंस अकाउंट, और आपको सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस भी पता करना है. सो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पहले इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो था एग्री नहीं हुआ, बराबर नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, और बाद में ये फाइंड आउट किया कि हम ये सारे एरर्स थे, इस एरर्स के कारण हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा था. द फर्स्ट वन इज द सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट बाय 800. सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट हो गई 800 रुपए से. परचेज रिटर्न किया साहू को 2000 रुपए जो पोस्ट नहीं हुआ. इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ मशीनरी पे 500 रुपए, लेकिन उसे मैंने डेबिट कर दिया एक्सपेंस अकाउंट में कितने रुपए से, 50 रुपए से. तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ अंडर कास्ट हुआ, यहाँ पोस्ट ही नहीं हुआ, यहाँ
डेबिट होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि जब भी हम कोई नई मशीन खरीदते हैं उसका जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर मशीनरी अकाउंट में डेबिट होता है। लेकिन यहां पर हमसे गलती क्या हुई, इस सिचुएशन में हमसे गलती ये हो गई कि हमने वो सारा अमाउंट कहां रिकॉर्ड कर दिया, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द, कहां रिकॉर्ड हो गया वो सारी चीजें, वो रिकॉर्ड हो गई एक्सपेंस अकाउंट में। वो भी कितनी रिकॉर्ड हुई, 50 रुपए। रिकॉर्ड कितना होना चाहिए था, 500 रुपए। रिकॉर्ड कितना हुआ, 50 रुपए। तो एरर है। इन सारे एरर को पहले रेक्टिफाई करते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल एंट्री पास करेंगे वन बाय वन। सो आंसर में ये तो आपको पता ही चल गया है कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। आपको करेक्ट एंट्री पता करनी है, सन्ड्री सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट हो गया है। अंडरकास्ट में सेम साइड या अपोजिट साइड, सर सेम साइड। सर ओवरकास्ट करके बताओ। देखो अगर सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट है तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट है तो सेम जगह इफेक्ट पड़ेगा। और यही अगर ओवरकास्ट होती तो डेबिट की जगह क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। अगर नहीं समझ में आ रही हैं सो प्लीज टेक अ नॉलेज फ्रॉम द जनरल चैप्टर, क्योंकि जनरल में आपको मैंने क्लियरली बताया था कि सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न एक्चुअली में डेबिट होता है। इफ देयर एनी अंडरकास्टिंग तो सेम इफेक्ट पड़ेगा ना, डेबिट होता है तो डेबिट होगा। अगर ओवरकास्ट हो जाता तो सेल्स रिटर्न यहाँ क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। वैल्यू कितनी है, 800, जिसका कोई नहीं होता, सस्पेंस अकाउंट होता है। परचेज रिटर्न टू साहू ₹2000 वेयर नॉट पोस्टेड, ये किस तरह की एंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो जाकर ये बनेगा कंप्लीट वन साइड एरर। परचेज रिटर्न किया साहू को, सो एंट्री क्या होती है, एंट्री इज द साहू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में तो रिकॉर्ड हो गया, साहू में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो साहू को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और सस्पेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 2000। okay, the third error, as you can see that on your screen, the third error will be सो द इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको कहां रिकॉर्ड होना चाहिए था, इंस्टॉलेशन चार्ज रिकॉर्ड होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट के नाम से, बट इट विल बी रिकॉर्डेड एज द डेबिट ऑफ द एक्सपेंस अकाउंट। यानी करेक्ट क्या था आपका, मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, तो मशीनरी को डेबिट कर दो। कितने से डेबिट होना चाहिए था मशीनरी को, 500 से। ओके, गलती क्या हुई, आपने उसकी जगह क्या डेबिट कर दिया, एक्सपेंस। सो एक्सपेंस डेबिट हो गया, तो एक्सपेंस को करेक्ट करने के लिए एक्सपेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट। गलती से डेबिट हुआ था उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो। कितने से डेबिट हुआ था, 50 रुपए से, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करोगे, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे। और यू नो वेरी वेल डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। आप यहाँ देख लो 800 800 2000 2000, यहाँ 550, तो 450 का डिफरेंस है क्रेडिट साइड में। तो किसकी हेल्प लोगे, यू विल टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। So this will be the rectification entries all of the थ्री एरर, ये तीनों एरर का रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ये तीनों एरर जो हैं उनको मैंने रेक्टिफाई कर दिया। एंड नाउ इसमें क्या बोला है, असर्टेन द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। इस पहले बोला कि एरर को रेक्टिफाई करो, मैंने रेक्टिफाई कर दिया। अब उस एरर को कंप्लीटली खत्म करने के लिए क्वेश्चन इज आस्किंग टू असर्टेन द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, यानी सस्पेंस अकाउंट में कितना डिफरेंस है, उसके लिए आपको यू विल हैव टू प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट। आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट। आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, द फॉर्मेट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट particular amount. So this is the basic format which you already used in the ledger account. So please do not get confused by this format. So date particular means date particular rupees, this is the suspense account. And you can see that in the first rectification entry suspense account क्या हुआ है, credit. तो suspense के credit में आएंगे और लिखेंगे by sales return, just like a posting. यू कैन सी दैट जनरल से हम क्या बना रहे हैं, लेजर। कौन सा लेजर अकाउंट बना रहे हैं, वी विल प्रिपेयर दी विच अकाउंट, वी प्रिपेयर दी, यस वी प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस का जहां जहां इफेक्ट पड़ा होगा उस साइड पे हम लोग इफेक्ट डालेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी सस्पेंस सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ऑफ सस्पेंस क्रेडिट है तो सस्पेंस के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। उसी तरह से सस्पेंस यहाँ अगेन क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाकर क्या लिखेंगे, बाई साहू, अपोजिट नेम, वैल्यू विल बी 2000। यहाँ पर भी सस्पेंस क्रेडिट है तो सस्पेंस के अपोजिट में कौन है, मशीनरी, तो मशीनरी लिखेंगे, बट यू नो वेरी वेल अमाउंट हमेशा किसके सामने का लिखेंगे, सस्पेंस के सामने का लिखेंगे, दैट इज 450। सो इन तीनों एंट्रीज में यू कैन सी दैट सस्पेंस यहाँ भी क्रिएट हुआ, यहाँ भी क्रिएट हुआ, यहाँ भी क्रिएट हुआ, तो तीनों का इफेक्ट सस्पेंस के किस अकाउंट साइड में पड़ा है, ये डेबिट साइड होता है, दिस इज अ क्रेडिट साइड। और अगर डेट दिया होता सो प्लीज मेंशन द डेट इन द लेजर अकाउंट एंड you will say you will have to responsibility to balance the account। आपको अकाउंट को बैलेंस करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अकाउंट बैलेंस नहीं है इट मींस अकाउंट कंप्लीट नहीं है। सो 800 200 2800 450 दैट इज 3250 इज द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस। सो डेबिट में भी क्या होना चाहिए, 3250 होना चाहिए। इट मींस कितना बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट में, सो वी फाइंड द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज 3250 एंड विच बैलेंस, दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस। सो द आंसर इज द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज, आंसर क्या है, क्रेडिट बैलेंस रुपीज 3250। हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज यू नो वेरी वेल क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। सो डेबिट में तो कोई वैल्यू नहीं, क्रेडिट में 3250 रुपए, so the credit balance is 3250। so the whole solution of this question is, first of all you pass the rectification entry and thereafter you have to prepare the suspense account, and after the preparation of the suspense account, this is the ledger account, you will balance the account and find out the difference in suspense account and clearly mention in your answer what is your answer, like a credit balance 3250। so I hope today we cleared all the topics very easily। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नए चैप्टर के साथ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट so please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group। Okay, thank you, thanks a lot and take care।